Hello guys, it's me Naz and welcome back to my channel. In this video, we'll continue our previous videos chapter, that is utility. In today's video, I will cover law of DMU, that is law of diminishing marginal utility, the most important question asked by you people in examination. So please guys, watch this video till the last. So first of all, I will tell you how to present the answer. The most important is to present the answer. If the question arises, write law of DMU, that is diminishing marginal utility. You have to write the statement, assumption, table, graph and observation. Okay? First of all, I will tell you what does mean by utility. If you had not saw my previous video, then please guys go and watch that video, because in that I had explained what utility does mean. Okay? So I will explain what marginal utility means. What do you mean by marginal? Marginal means extra. Extra unit I consumed and I got extra satisfaction, that is called marginal utility. I will explain this again. Marginal means extra, that is extra unit I consumed and extra utility I got. Statement is correct. Other condition remaining the same, the additional benefit or the marginal utility that a person derives from a given increase of the stock of a thing diminishes with every stock of that he already has. समझा कुछ नहीं, मुझे भी नहीं समझा. सो फर्स्ट थिंग आई विल एक्सप्लेन यू कि कोई भी लॉ का स्टेटमेंट स्टार्ट होता है अदर कंडीशन रिमेनिंग द सेम. इसका मतलब क्या होता है पता है कि इकोनॉमिक्स में कोई भी लॉ अप्लाई करने के लिए यू हैव टू अज्यूम समथिंग. आपको कुछ मान के चलना पड़ता है तो ही वो लॉ अप्लाई होगा, अदरवाइज वो लॉ अप्लाई नहीं होगा. सो पहले स्टेटमेंट एक्सप्लेन करने के पहले आई विल एक्सप्लेन व्हाट आर दैट अजम्पशंस. अदर कंडीशन रिमेनिंग सेम मतलब ऐसे कौन से अजम्पशंस है, ऐसा क्या मानना पड़ेगा so that ये law apply होगा. तो पहला assumption है, a consumer is a rational person consume mangoes. Rational person मतलब क्या? Normal person. जो consumer है वो एक normal person है. The mangoes are identical in all respect. Identical मतलब क्या? Sorry, same. यहाँ पे क्या बोल रहा है कि पहली बात आपको assume करना है, मान के चलना है कि वो इंसान बहुत ही normal इंसान है. वो इंसान मैंगो खा रहा है और वो इंसान जो मैंगो खा रहा है वो सेम है. सेम मतलब क्या? सेम इन शेप, सेम इन साइज, same in taste, same in color, which is not possible, but ऐसे मान के चलना है. The next assumption is the consumer consume them continuously. मतलब वो जो consumer खा रहा है वो continuously back to back mangoes खा रहा है. And utility can be measured in cardinal number. If you had saw my previous video, मैंने बोला था खुशी को numbers में नहीं define कर सकते, but यहाँ पे क्या बोल रहा है कि utility can be measured in cardinal number. मतलब मैं numbers में define करूँगी कि वो चीज खाने के बाद मुझे कितनी खुशी मिली. ठीक है? So we'll see the table. I hope you're clear with assumption. We'll see the table. So now we will see the table. For example, suppose I am consuming mango. मैं example के तौर पे explanation करना चाहती हूँ कि for example से कि बहुत दिनों के बाद you went to your village. ठीक है? आप आपके native place में गए हो. पहली बात तो साल के बाद you went to your native place. Mango साल में एक बार आने वाला fruit है. तो your granny became very happy to see you कि इतने साल के बाद मेरा नातू यहाँ पे आया. ठीक है? So you had been crazy about mango. You went to your village and आपकी दादी ने आते ही आपको mangoes दिया. ठीक है? That first smell, you will feel that, right? You will feel that you will enjoy having mangoes because you love mango. But what if in case कि आपकी दादी ने आपको आते ही mangoes दिए, उसके बाद lunch में mangoes दिए, evening snacks में mangoes दिए, रात के dinner में mangoes दिए, next morning भी mangoes दिए, अभी भी उतना ही craze रहेगा क्या mango का? Obviously नहीं. Dude, एक point के बाद you will be fed up by mangoes. You know, उसके बाद खुशी कम होते जाएगी because you are not liking mango at all because continuously you are consuming mango. ठीक है? So ऐसे पॉइंट पे क्या होगा पता है? स्टार्टिंग में you love mango. ठीक है? बहुत खुशी मिलेगी, बहुत अच्छा फील होगा. उसके बाद मैंगो खाने में थोड़ा सा कंटाल आएगा, खुशी थोड़ी सी कम होगी. बट अगर मैंने फिर से मैंगोस दिए तो यू विल फील लाइक क्या है, सुबह शाम दिन रात मैंगो. एक पॉइंट ऐसा आएगा ना कि यू डोंट वांट टू ईट मैंगो बट जस्ट बिकॉज योर ग्रैनी इज इंसिस्टिंग कि खा ले आप मैंगो खा रहे हो, बट यू आर नॉट फीलिंग दैट, यू आर नॉट गेटिंग दैट टेस्ट क्योंकि मैंगो बहुत खा चुका, यू आर फेड अप. ठीक है? एंड उसके बाद भी वो पॉइंट के बाद भी आप फेड अप हो चुके हो, फिर भी रात को डिनर में मैंगोज आ रहे हो.
सो भाई वो जो पॉइंट होगा ना, यू विल फील कि वो मैंगो लेके मारूं, दादी को नहीं बट स्टिल मारूं। व्हाई? बिकॉज यू गॉट फेड अप यार कि आप कितना मैंगो खाऊं, मैं कितना मैंगो खाऊं, ठीक है। सो आई विल एक्सप्लेन दिस इन दिस टेबल कि पहला मैंगो कंज्यूम किया, बहुत खुशी मिली 10 यूनिट्स। सेकंड मैंगो खाया, खुशी थोड़ी सी कम हुई 8 यूनिट। तीसरा खाया 6, मतलब खुशी कम कम हो रही है। एंड टोटल मार्जिनल यूटिलिटी मतलब क्या? 10। सेकंड यूनिट कंज्यूम किया 8, 10 + 8 18। थर्ड पे थोड़ा सा कम हुआ, फोर्थ पे थोड़ा सा कम हुआ। फिफ्थ इज अ पॉइंट विच इज कॉल्ड एज अ सैचुरेशन पॉइंट। फिफ्थ इज अ पॉइंट विच इज कॉल्ड एज अ सैचुरेशन पॉइंट। मतलब क्या? इस पॉइंट पे जस्ट बिकॉज दादी बोल रही है कि खा ले बेटा मैंगो, इसीलिए तुम खा रहे हो, बट तुमको मैंगो की कोई टेस्ट फील नहीं हो रही है, तुमको कुछ फील नहीं हो रहा है। सो दैट इज द पॉइंट, इट इज कॉल्ड सैचुरेटेड पॉइंट। एंड ये पॉइंट के बाद अगर फिर से दादी ने मैंगो दिया तो दिस इज द पॉइंट वेयर यू विल फील कि वो मैंगो के साथ सामने वाले को मारूं, बिकॉज ये पॉइंट के बाद यू स्टार्टेड हेटिंग मैंगोज, मतलब तुम अगले साल तक मैंगो की शक्ल भी नहीं देखना चाहोगे आफ्टर फिफ्थ पॉइंट, ठीक है। सो स्टार्टिंग में मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश होता है, एक पॉइंट के बाद मार्जिनल यूटिलिटी विल बिकेम 0, दैट पॉइंट इज कॉल्ड सैचुरेशन पॉइंट। एंड उसके बाद मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव होता है, ठीक है। सो दिस अबाउट द टेबल। सो आई होप यू आर क्लियर विद द अजम्पशन एंड द टेबल। विल सी स्टेटमेंट फटाक से। अब स्टेटमेंट समझने में बहुत इजी जाएगा। अदर कंडीशन रिमेनिंग सेम, मतलब जो assumptions है भाई वो सेम के सेम रहने चाहिए। The additional benefit or the marginal utility that a person derive from a given increase of the stock. Additional मतलब क्या? मैंने 1 यूनिट बढ़ाया, मैं पहले 1 मैंगो खा रही थी, अब मैं 2 मैंगो खा रही हूँ, तो मेरे को यूटिलिटी कितना मिल रहा था? पहले 10, अब कितना मिल रहा है? 18। तो ऐड कितना हुआ? 8। समझ में? पहले मैंने 1 यूनिट खाया तो 10, दूसरा यूनिट खाया तो 18, तो ये जो एडिशनल बेनिफिट मिला 8। क्यों मिला एडिशनल बेनिफिट? क्योंकि मैंने एडिशनल यूनिट खाया। सो द एडिशनल बेनिफिट और द मार्जिनल यूटिलिटी दैट अ पर्सन डिराइव फ्रॉम अ गिवन इंक्रीज ऑफ द स्टॉक। स्टॉक में इंक्रीज हुआ इसीलिए मेरे यूटिलिटी में इंक्रीज हुआ। ऑफ अ थिंग डिमिनिशेस विद द एवरी स्टॉक ऑफ दैट ही ऑलरेडी हैज, बट वो जो रेट है वो क्या होगा? डिमिनिश होगा। डिमिनिश मतलब क्या? विद अ स्मॉल रेट, विद अ स्मॉल रेट। ये एक समझाती हूँ कि सपोज मैंने फर्स्ट मैंगो खाया, आई एम अ मैंगो लवर, और मुझे सेकंड मैंगो दिया, तुरंत मुझे नफरत होगी क्या? नहीं, बट 10-15 मैंगो कंटिन्यू खाने के बाद मेरी जो क्रेज है, मेरा जो टेस्ट है वो बदलते जाएगा। सो वो तुरंत ऐसे नहीं होता कि फर्स्ट मैंगो खाया बहुत ज्यादा खुशी मिली और सेकंड मैंगो पे डायरेक्ट आई स्टार्टेड हेटिंग मैंगोज। नो, ये जो यूटिलिटी खुशी है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। सो आई होप यू आर क्लियर विद द डेफिनेशन। अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग अदर कंडीशन रिमेनिंग द सेम। द एडिशनल बेनिफिट और द मार्जिनल यूटिलिटी दैट अ पर्सन डिराइव फ्रॉम अ गिवन इंक्रीज ऑफ स्टॉक ऑफ अ थिंग डिमिनिशेस। एडिशनल बेनिफिट मिल रहा है, क्यों एडिशनल बेनिफिट मिल रहा है? क्योंकि मैंने स्टॉक इंक्रीज किया है, तो वो जो एडिशनल बेनिफिट है वो स्मॉल रेट से क्या हो रहा है? डिमिनिश होते जा रहा है, ठीक है। सो डन।